So we are starting with inventory management. Yesterday we have done the introduction part. So today we are starting with inventory management. So what is inventory? Inventory is stock. And why we need to manage inventory? Since inventory is the one which is an essential element of our business activity, because this is the one which we are going to sell to people and earn our revenues, and our profits are going to depend upon our sales. Henceforth, we need to ensure that whatever the inventory we have is sold properly, is bought properly, is purchased at less cost, is maintained well and properly, is like kept in the godown or the warehouses with the proper care, and we need to spend our money for those reasons, like warehouse cost, like holding cost. And when we order the inventory, we need to pay to the agents. That comes as ordering cost. So there are various costs associated with the inventory. So let me explain you everything. पागल है लड़की, इसको ऐसे लेके आते क्या? जा। हाँ ठीक है, छोड़ दो. Very essential. It's the most important element for our business activity. We'll sell inventory or stock and generate our revenues. So definitely this inventory incurs certain costs. First, ordering costs, and then carrying cost. Yes, thank you. Ordering cost is nothing but when you place order in the market, you hire some agents, you pay commission to them, and carrying cost is nothing but holding cost. Holding cost, just a minute. Okay, you can take ordering cost and holding cost. So holding cost is like warehouse rent, go down rent, and there's also one like purchase cost. Purchase cost and ordering cost I'll club as one. Like you pay certain duties like customs and freight charges for bringing the inventory from one place to your factory or premise, and you pay some commission to agents, etc. Warehouse rent or go down rent, insurance of your goods, pilferage like damages, etc. So all these costs are going to incur. So your ultimate aim to manage inventory is to minimize these costs. You want to minimize these costs. कोई भी बंदा क्या करेगा, अपना खर्चा कम करने का देखेगा. तो अपन इन्वेंट्री को ऐसे अपन सस्ते में लेके आना है, इसको सबसे लीस्ट कॉस्ट में लेके आना है, एडिक्वेट क्वांटिटीज लेके आना है. ज़्यादा भी लाएंगे तो अननेसेसरी स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम लेके आएंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा. स्क्रैप बनेगा तो वैसे भी लॉस है, स्टॉक आउट होगा तो कस्टमर का लॉस होगा, या ऑन द स्पॉट किसी से परचेस करेंगे तो महंगा होगा, मार्जिन कम आएगा. तो ये सारे इश्यूज इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं.
जो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो पर्टिकुलर रेमेडीज देखेंगे जिससे हम इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। ओके। इन्वेंट्री क्यों होल्ड करके रखना चाहते हो? एक तो सेल करने के लिए, एक हमारे पास इन्वेंट्री की कमी ना हो जाए उसके लिए। हम एक बिजनेस कर रहे हैं और उसमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम लोगों को बेचेंगे, और तो इसीलिए हमको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। Costs, what are the costs related to inventory? So one is the purchasing cost, or the cost of goods sold, cost of goods purchased from suppliers. तो जो सप्लायर को आप प्राइस पे करते हो गुड्स खरीदने के लिए, वो आपका परचेज कॉस्ट होता है, और मैन्युफैक्चर के लिए ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ये परचेज कॉस्ट होता है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑब्टेनिंग परचेज अप्रूवल्स, प्रिपेयरिंग एंड इश्यू परचेज ऑर्डर्स। अब जैसे आपके कंपनी में स्टाफ है, वो बंदा ये काम में लगा हुआ रहता है, तो उसको भी खर्चा देना होता है, उसको सैलरी देनी होती है। इसके लिए ऑर्डर रिसीव करते हैं आप, इंस्पेक्शन करते हैं वगैरह, या किसी को हायर करके करवाते हैं, इनवॉइसेस मैच करना, आपने जितना ऑर्डर दिया और कितना आपको आया, और एनी अदर स्पेशल प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विथ ऑर्डरिंग। तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। कैरिंग कॉस्ट, उसको रखने का खर्चा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो टैक्सेस वगैरह आप पे करते हो। स्टॉक आउट्स भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम सामान ना बेच पाए तो हमको रेवेन्यू का लॉस होता है, और ऑन द स्पॉट खरीदना महंगा होता है। इन्वेंट्री श्रिंकेज, इन्वेंट्री का क्या होता है? कई बार हम जो इन्वेंट्री लाइक वाकई ही हम जो बुक्स में बताते हैं और एक्चुअलिटी में, दोनों में डिफरेंस निकल जाता है। तो कई बार वो इन्वेंट्री दबा लिया जाता है, एम्बेजलमेंट बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स थेफ्ट कर लेते हैं। ओके, थेफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। वो क्या करते हैं, 2 लॉरी बोलते हैं, 4 लॉरी मंगवाते हैं स्टॉक, और 3 लॉरी का बिलिंग, 4 लॉरी का स्टॉक का बिलिंग बनाते हैं, लेकिन आता है लेकिन 3 ही आता है, और एक को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसा करके चोरी भी करते हैं, थेफ्ट भी करते हैं, या क्लेरिकल एरर्स के वजह से भी कई बार इन्वेंट्री ज़्यादा कम हो जाती है। अदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टर्म्स, लीड टाइम। लीड टाइम मतलब हाई टाइम। अब हमें फिर से ऑर्डर मंगाने की जरूरत है। लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम ए कंपनी मस्ट वेट टू रिसीव द नेक्स्ट शिपमेंट ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर इट प्लेसेस एन ऑर्डर। अब वो हाई टाइम है, मतलब हम लोगों ने अभी ऑर्डर दे दिया है, अब हम सिर्फ ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, उसको लीड टाइम बोला जाता है। लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम ए कंपनी मस्ट वेट to receive the next shipment of inventory after it places an order. The longer the lead time is, the greater the company's risk of stockouts while it is waiting to receive the order. मतलब हाई टाइम, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बस उसका आने का वेट कर रहे हैं शिपमेंट का, और जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना हमें नुकसान होगा, क्योंकि उतना ही स्टॉक आउट होता रहेगा, उतना हमारे पास स्टॉक की कमी रहेगी, उतना हम सामान लोगों को बेच नहीं पाएंगे। सेफ्टी स्टॉक यानी हमेशा ये स्टॉक आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपना बिजनेस, आप मार्केट का डिमांड को देखते हुए, आप कितने साल के एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस को देखते हुए, आप ये देखते हैं कि मार्केट में कितना सामान बिकता है, और हमेशा आप एक सेफ्टी लिमिट बना के रखते हो, जितना आपको हमेशा रखना होता है आपके पास, जिसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, तो उसे वो हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सो लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक ए कंपनी कैरीज इज वन ऑफ इट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट स्टॉक आउट्स। यानी सेफ्टी स्टॉक इसलिए मेंटेन किया जाता है कि हमें कभी भी स्टॉक आउट ना हो, यानी कमी ना हो स्टॉक की। एक ऐसा लिमिट जहाँ तक हम आने ही नहीं देना चाहते हैं, वो डेंजर, उसके नीचे जाएगा तो डेंजर लिमिट हो जाएगा। तो स्टॉक को हमेशा, जैसे होता है ना कि हमें अपने लाइफ को चलाने के लिए 5 लाख रुपए हमेशा अपने पास कैश रखना चाहिए। 5 लाख रुपए मतलब, अब जैसे आपका मंथली खर्चा, चलो अभी लॉकडाउन पीरियड आ गया है, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लॉकडाउन चल रहा है, तो अब इस टाइम पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अब जिनका गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट विल पे देम, चलो ठीक है, गवर्नमेंट 1 2 3 महीने तो दे सकता है। अब लॉकडाउन अगर 6 6 8 महीने का हो गया तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इकोनॉमी इज एट स्टैंड स्टिल राइट नाउ। इकोनॉमी भी अभी रुक गया है पूरा,
बहुत लोगों के पास अभी जॉबलेस भी हो गए, डेली जॉब करने वाले, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट बिजनेसेस पूरे बंद हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है। चलो हम ले पा रहे हैं, हमारी किस्मत है। बहुत से लोग अभी ऑनलाइन मोड समझते भी नहीं है, समझे भी नहीं है, और बहुत से लोग लेते भी नहीं है, बहुत से लोग ले रहे भी नहीं है। सब बंद है, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड आपका डॉक्टर क्लिनिक्स, अच्छा सबसे बड़ा लॉयर्स, कोर्ट नहीं जा सकते, सब बंद है। तो अब इस टाइम पे एक बंदे को यही चीज़ दिखता है कि उसके पास कितना सेफ्टी कैश उसे रखना चाहिए हमेशा। सपोज 5 लाख रुपए हम रखते हैं और हमारा खर्चा है 20,000, हमारा रेंट को जाता है, 10,000 मंथली प्रोविजंस को जाता है, और 10,000 हमारा मतलब 5,000 हमारा ईएमआई को जाता है, 5,000 हमारा रेगुलर खर्चा होता है, बाहर कहीं घूमने वगैरह, वीकेंड वगैरह का खर्चा। 50, देखो 20,000 रुपये क्या चीज़ का खर्चा बताया मैंने, रेंट का खर्चा, ठीक है। 10,000 रुपये हमारा खाने पीने का, राशन का खर्चा। 5,000 रुपये हमारा ईएमआई, बाइक का ईएमआई सपोज। 5,000 रुपये हमारा होटल वगैरह का जनरल खर्चा। 1,000 रुपये हमारा हम रखते हैं मेडिसिन के लिए। महीने का 2,000 रुपये हमारा जाता है इंश्योरेंस वगैरह के लिए, और 1,000 रुपीज़ हमारा फ्यूल के लिए। तो 20, 30, 40, और ये हो गया हमारा 44। अच्छा, और फिर हमारे जो लाइक मेड के लिए, मिल्क के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के एक 6,000 समझ लो। तो 50,000 आपको चाहिए किसी भी हाल में अपने खर्चे चलाने के लिए। अब इसमें मैं आपको बच्चों की फ़ीस वगैरह का नहीं बता रहा हूँ, एजुकेशन फ़ीस वगैरह, चलो ठीक है वो हमारे, अब चलो 60,000 आपको चाहिए, और आपके पास मिनिमम कैश आपने रखा है 6 लाख रुपए का। तो आपके पास 6 लाख, 7 लाख रुपए, सपोज 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 7,20,000, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, 1 ईयर का आप प्रोविजन लेके चल रहे हो कि इन इन एनी सिनेरियो, वर्स्ट केस सिचुएशन में भी आपके पास महीने का खर्चा चलाने का पैसा है, जिससे आप घर में बैठकर, यानी घर में कोई नहीं बैठना चाहता, यूथ तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहता, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो काम करेगा। क्योंकि अगर वो महीने का 30,000 भी कमाता है तो उसका खर्चा वो 30,000 के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये गाड़ी का ईएमआई लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये कुछ 2-3 साल के पीरियड के लिए ही होता है। तो ये तो हमारा रिड्यूस कर सकते हैं हम। होटल का खर्चा भी हम लोग 5,000 से 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा बजट में खा लेंगे या घर पे ज़्यादा खाएंगे। कुछ खर्चे हम मेंटेन कर सकते हैं। मेडिसिन का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा 1,000 रुपीज़। हम यूथ हैं, अगर घर में पेरेंट्स वगैरह हैं तो ठीक है, उनका खर्चा होता है। और बहुत सी चीज़ें हम सेव भी कर सकते हैं। तो हम सपोज़ अगर हम 7,20,000 लेके भी चलते हैं तो कंफर्टेबली 1 ईयर का पैसा हमारे पास है। अगर कभी लॉकडाउन आ गया तो 3-4 महीने, 2 से 3 महीने हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। 3 महीने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन में 3 महीने का प्रॉब्लम, उसके बाद अगर जॉब नहीं है, 6 महीने लग रहा है जॉब सर्च करने में, 6 महीने में कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगा। कोई भी बंदे को कुछ भी कर लो, 6 से 8 महीने में जॉब मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो लग ही जाएगा सिचुएशन देखकर। तो 1 ईयर का प्रोविजन आप रखते हैं तो सेफ होता है। तो वही अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यू हैव मेड ए सेलिंग लिमिट की 7,20,000 आपके पास हमेशा होना चाहिए। वैसे इन्वेंट्री भी हमारे पास 5 लाख का माल हमेशा होना चाहिए रिजर्व में, जिसको हम लीफो फीफो मेथड से जैसा भी चाहे मेंटेन कर सकते हैं। जो लास्ट में आता है उसको फर्स्ट बेच देना, या जो पहले से ही हमारे पास आके पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, पहले से आ गया और उसको पहले, मतलब ओल्ड स्टॉक को पहले बेचना, ओल्ड स्टॉक को पहले बेचना, नए स्टॉक को ऐड करते जाना, ओल्ड स्टॉक को पहले बेचना, नए स्टॉक को ऐड करते जाना। तो आप अपने बिजनेस में मेंटेन कर रहे हो वो चीज। तो लेकिन 5 लाख की इन्वेंट्री हमेशा आप क्या बोलते हो कि मेरे पास रहना चाहिए 5 लाख का माल, इसके नीचे अगर गया तो डेंजर है, स्टॉक आउट का डेंजर हो सकता है, सीइंग द सिचुएशन इन द मार्केट, यानी मार्केट डिमांड एंड एवरीथिंग देखकर, ठीक है।
तो इसलिए आप हमेशा चाहते हो कि सेफ्टी स्टॉक रहे. द अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ए कंपनी नीड्स टू होल्ड विल बी अफेक्टेड बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ लीड टाइम. यानी लीड टाइम अगर बढ़ गया, लीड टाइम मतलब वो टाइम जहां पर आप शिपमेंट का वेट कर रहे हो, शिपमेंट आपका 2 महीने में आने का है, उसका डिले हो रहा है, ब्लॉकआउट हो गया पूरे वर्ल्ड में, शिपमेंट कहां से आएगी, अब कहां से शिपमेंट चलेगी. कार्गो शिप्स भी अभी मुश्किल से आ रही है, मुश्किल से जा रही है, और कई जगह तो लॉकडाउन में बंद ही है, समझ लो. वायरस का ये वो दूसरे कंट्री को जाएगा तो वायरस लेके आ जाएगा, वायरस कैरियर बन जाएगा. तो इसीलिए वेरिएबिलिटी के वजह से अब जैसे आप किराना शॉप में आप सब लोग सोच रहे हैं अरे इनको धूम कमाई है, कई किराना शॉप खाली हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं उनका स्टॉक, वो पूरा बेच दे रहे हैं और खाली हो जा रहे हैं, वो भी शॉप बंद करके घर पे बैठ रहे हैं. कहाँ से आएगा, कहाँ से सामान आएगा उनके पास. वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अब अचानक से डिमांड बहुत बढ़ गया और स्टॉक आउट नहीं होना, क्योंकि उसका कॉस्ट अलग होता है, आप कस्टमर लूज करते हो. ये सब चीज़ें भी मायने रखती है, इसलिए सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी होता है. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीऑर्डर पॉइंट. सो रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? द रीऑर्डर पॉइंट इज द लेवल जहां पर आपको वापस से एक ऑर्डर प्लेस करना है. द लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री दैट इंडिकेट्स व्हेन अ कंपनी नीड्स टू प्लेस द ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री. द रीऑर्डर पॉइंट इज द लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री दैट इंडिकेट्स, मतलब आपके पास कुछ इन्वेंट्री अभी है और आपको लगता है कि अब ये इन्वेंट्री हमारे पास जितना आ गया वो ऐसा लेवल आ गया कि उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी सेफ्टी इन्वेंट्री तक आप पहुंच गए हो. कहाँ तक पहुंच गए हो? सेफ्टी. अब उसके ऊपर हमको ऑर्डर करना ही पड़ेगा. तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक के ऊपर एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम. यानी सेफ्टी स्टॉक तो आपके पास है ही, उसके ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा डिमांड आ रहा है मार्केट में, लीड टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 महीने 8 महीने बढ़ सकता है. तो अब आपको डेफिनेटली लाइक आपका डिमांड जो आप देख रहे हो लीड टाइम के समय में, लाइक हम एक लीड टाइम समझो 2 महीने का लेके चलते हैं, तो 2 महीने का लेके चलते हैं. तो अब क्या होता है कि द रीऑर्डर पॉइंट इज द लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री. रीऑर्डर पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री, मतलब जो आपके पास अभी पड़ा हुआ इन्वेंट्री है, दैट इंडिकेट्स व्हेन कंपनी नीड्स टू प्लेस द ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री. सेफ्टी स्टॉक के लेवल तक आप पहुंच गए. अब आपको लीड टाइम भी अगर बढ़ सकता होगा सपोज मार्केट में, या लीड टाइम कम हो गया तो अच्छी बात है, अगर बढ़ गया तो आपको फिर स्टॉक की कमी हो जाएगी, आपको फिर स्टॉक की ज़रूरत पड़ रही है. इसीलिए तो इसीलिए आप एक्सपेक्टेड डिमांड को देखते हुए आप कुछ सोचते हो कि हाँ भाई डिमांड बढ़ सकता है, या जो भी वॉलेटिलिटी डिमांड में होगी उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. तो इसीलिए सेफ्टी स्टॉक के ऊपर एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम. तो एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेली यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम इन डेज. मतलब एवरेज डेली यूसेज आपके पास जो लोग भी सामान खरीदने आते हैं, एवरेज में 100 कस्टमर आते हैं, एवरेज में 100 कस्टमर आते हैं, और एवरेज लीड टाइम इन डेज, और एवरेज में जो लीड टाइम 2 महीने का चलता है 60 डेज का, तब तक का सामान आप हमेशा अपने पास रख के चलते हो सेफ्टी स्टॉक समझकर. यानी 2 महीने का स्टॉक 5 लाख रुपए का वर्थ का आप हमेशा लेके चलते हो, और उसके ऊपर जो भी है आप एक्स्ट्रा ऑर्डर प्लेस करते रहते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डर देके सामान को खरीदते रहते हो, ताकि आपका जो लेवल है वो मेंटेन रहे और आपके पास स्टॉक आउट भी ना हो. दैट इज व्हाट रीऑर्डर पॉइंट इज. सेफ्टी लेवल के ऊपर ही अपने आप को, अपने धंधे को अपने को चलाना है. जैसे 7,20,000 रुपए हम बाजू रख दिए, उसको टच नहीं करना है कभी. उसके ऊपर जो भी, अब देखो क्या होता है, अब यहां पर समझो आप 7,20,000 आपका रख लिया, आप इसको टच नहीं करना है आपको. अब क्या है इसके ऊपर, अब आपके पास क्या है, 15 लाख रुपए हैं. चलो मैं यहां पर आता हूं. तो हमने क्या अभी डिस्कस किया है कि 7,20,000 हमारे पास हमेशा रहना चाहिए रिजर्व. कभी भी 1 साल का खर्चा कभी भी रिजर्व रहना. वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास 15 लाख से बहुत ही कंफर्टेबल है ना, आपके पास 10 लाख है, बहुत कंफर्टेबल है. तो आप क्या चाहोगे? क्या ये 7,20,000 के ऊपर एक्स्ट्रा जो है उसको खर्च कर लोगे? नहीं, आपके पास पड़ा है. और एडिशनल आगे का सिनेरियो देखते हुए अरे कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो एक बात अलग है. प्लस आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते भी हो, तो आप क्या देखते हो कि इसको मैं टच ही नहीं करूं, और जो भी मेरा खर्चा है मैं इसमें चला लूं हर महीने. वैसे ही होता है, आप 5 लाख का माल हमेशा रखना चाहते हो अपने पास. 5 लाख का माल हमेशा रखना चाहते हो, उसके ऊपर जो भी मार्केट में डिमांड है उतना उतना स्टॉक आप मंगाते रहते हो, बेचते रहते हो.
एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम को देखते हुए। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड ईच टाइम ऑन ऑर्डर इज प्लेस्ड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब एवरेज की बात कर रहे हैं तो बाई 2 होता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देख लेना। सेफ्टी स्टॉक आपका यहाँ है, रीऑर्डर पॉइंट आपका यहाँ है। यानी आप रीऑर्डर सेफ्टी स्टॉक के ऊपर अमाउंट जो भी आपका फॉर्मूला था वो आपका रीऑर्डर पॉइंट होता है। क्या था आपका फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड डिमांड इन द लीड टाइम। तो आपका सेफ्टी स्टॉक आप हमेशा रखते हो 100 और एक्सपेक्टेड डिमांड इन द लीड टाइम आपका जो हो रहा है 100 से 300 के बीच में 200 कुछ हो रहा है। तो यहाँ आपका रीऑर्डर पॉइंट होता है, यानी यहाँ पर आप एक और ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब यहाँ तक आप आने नहीं दोगे। यहाँ पर एवरेज डिमांड अभी जो मार्केट में आपका है वो 200 लाइक यूनिट्स का हो रहा है। तो 200 यूनिट्स आपके पास ऊपर ऊपर आप बेचते रहते हो हमेशा, और एडजस्टमेंट्स करते रहते हो। यानी इसमें से भी पुराना माल बेच दिया, फिर इसमें फिर वो नया माल आते इसमें डाल दिया। यानी 100 का तो हमेशा मेंटेन कर रहे हो। उसके ऊपर डिमांड को देखते हुए ऊपर ऊपर सामान खरीदते रहते हो, निकालते रहते हो, खरीदते रहते हो, निकालते रहते हो। ठीक है ना? वो कहाँ पर, जैसे ये पॉइंट पे आप आते हो रीऑर्डर कर लेते हो, वापस ये पॉइंट पे आते हो रीऑर्डर कर लेते हो, यानी वापस सामान मंगा लेते हो, बेच लेते हो। लेकिन यहां तक आने नहीं देते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो यहां पर आके यहां पर भी आना पड़ सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में यहां नहीं आने देते हो, क्योंकि स्टॉक आउट नहीं चाहते हो आप। स्टॉक आउट मतलब सामान खत्म होने की लाइक नौबत नहीं आना चाहिए, सामान खत्म होने का पॉइंट नहीं आना चाहिए आपको। अच्छा, ईओक्यू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लेवल होता है जहां पर अगर आप अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका लाइक होल्डिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम या सबसे लीस्ट लेवल पे होता है। सपोज मैं यहाँ पर अभी एक डायग्राम बना रहा हूँ और मेरा जो कॉस्ट है वो 100 है सपोज। ठीक है, मेरा इन्वेंट्री लेवल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें से नहीं दिखाता हूँ, दूसरे से दिखाता हूँ। एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये आप देख सकते हो, आपका होल्डिंग कॉस्ट यहाँ से जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आपका इन्वेंट्री लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जितना जितना इन्वेंट्री आपका बढ़ता जाएगा, 100 यूनिट्स था तो आपका होल्डिंग कॉस्ट कुछ और था। जितने यूनिट्स बढ़ाते जाओगे उतना खर्चा उसको होल्ड करने का बढ़ता जाएगा, इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितना ज़्यादा बल्क में ऑर्डर दोगे उतना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जाता है। ये दोनों आके एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ये पॉइंट पे दोनों सबसे मिनिमम लेवल पे होते हैं और यही पॉइंट आपका ईओक्यू होता है। उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी 500 यूनिट्स वो लेवल है
500 यूनिट्स वो लेवल है जहां पर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों भी सबसे मिनिमम होता है, इसीलिए दे से मेंटेन योर इन्वेंट्री लेवल्स एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमेशा डायग्राम को याद रखना, भूलना मत, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पॉइंट है। ये देखो आपका इन्वेंट्री लेवल, ये आपका मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम लेवल है। मिनिमम लेवल पे आप आने नहीं देना चाहते, और रीऑर्डर लेवल यानी ये एक लेवल आता है जिसके ऊपर आपको वापस से ऑर्डर प्लेस करना है, और ये मैक्सिमम लेवल को टच कर रहे हो आप। ठीक है, यानी आप कभी भी क्या चाहते हो, डेंजर जोन में नहीं जाना, इसके बीच में चलेगा, इसके ऊपर भी ऑर्डर आप ले सकते हो, और यहाँ मैक्सिमम लेवल है आपका, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी का एक्स्ट्रा स्टॉक पाइलअप करते जाओगे तो आपका स्टॉक भी स्क्रैप हो सकता है, यानी डिमांड नहीं होगा तो वेस्ट पड़ा रहेगा। ठीक है, किसी को भी कोई पॉइंट, कोई अगर बाद में डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला देख लो, √2AD/K। अब ए और डी क्या है? ए तो आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट, डी है आपका एनुअल डिमांड, और के है आपका कैरिंग कॉस्ट। वापिस से मैं लिख के देता हूँ, √2CO लाइक बाई डी भी बोलते हैं हम लोग। √2OD/C भी बोल सकते हैं इसको, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। √2OD/C ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल। अब मुझे मत पूछना सर इसका डेरिवेशन समझाओ फॉर्मूले का, जरूरत नहीं है, ना आता है ना कोई पूछता है। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड ऑफ द गुड्स, कैरिंग कॉस्ट। तो इसके ऊपर आपको एक सम रहेगा, वो करना है आपको, सब कुछ दिया हुआ रहेगा क्लियर। यानी मैं आपको यो की बता दिया कि कौन सा क्वांटिटी जिसपे आपको सबसे कम खर्चा होगा। जस्ट इन टाइम सिस्टम, जस्ट इन टाइम अप्रोच टोयोटा मोटर कंपनी ने निकाला। ठीक है, टोयोटा मोटर कंपनी फेमस कंपनी है, एवरीवन नोज दैट। आप जो लैंड क्रूजर है, आपका फॉर्च्यूनर है, ये सब टोयोटा कंपनी के ही प्रोडक्ट्स है, और इन्होंने यही जस्ट इन टाइम अप्रोच निकाला है। वो क्या है जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम यानी आप पहले से ही बना के पूरा मत रख दो सामान। आप जो भी आपका गुड्स है उसको बना के पाइल अप करके मत रखो। जैसे अगर मुझे, आप कभी भी देखो कैसा होता है मैन्युफैक्चरिंग, कैसा होता है गाड़ियों का, पहले एक कंपनी जो है वो अपना एक प्रोटोटाइप बनाती है, इसको किसी ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले करती है, पब्लिक इसको देख के उसका इमेजिनेशन को वो कैच करने की कोशिश करती है, और पब्लिक से रिव्यूज़ भी लेती है कि, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, ऑटो एक्सपर्ट्स भी आते हैं, उनसे भी रिव्यू लेती है और पूछती है कि हमारी गाड़ी के ये राइवल्स है, कंपैरिजन में आपको क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। उनके जेन्युइन रिव्यूज़ लेती है, उसके बाद प्रोटोटाइप में थोड़े बहुत चेंजेस करके एक टीज़र लॉन्च करती है। टीज़र से वो देखती है पब्लिक में कितना एक्साइटमेंट है, ब्लॉग्स वगैरह जितने भी चेक वेक करना, लोगों का क्वेरीज वगैरह जो उसके वेबसाइट पे आता है वगैरह, उसके बाद फिर वो समझ जाती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया मार्केट में, उसके बाद बुकिंग स्टार्ट करते हैं। क्या वो लोग अभी कभी 5,000 गाड़ी बना के रख देंगे और उसको एक बहुत बड़े ग्राउंड में स्टोर करने की ज़रूरत होती है? कहाँ से इतना इतना फैसिलिटी क्रिएट करेंगे? सिटीज़ में एक इतना बड़ा ग्राउंड लेना मतलब एकड़ों की ज़मीन लेना, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता, फ़ायदा ही नहीं है उससे। और डीलरशिप्स के पास इतनी जगह भी नहीं है कि इतनी गाड़ी रख सके वो लोग। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट इन टाइम अप्रोच कम्स इनटू पिक्चर। जस्ट इन टाइम मतलब बुकिंग्स ओपन करते हैं और उसके बाद बुकिंग्स लेना शुरू करते हैं। हैदराबाद, पूरे हैदराबाद में कम से कम 50 डीलरशिप्स है, 5-5 किलोमीटर के एरिया में एक एक डीलरशिप होता है। तो 50,000 मतलब हैदराबाद पूरे में 10,000 ऑर्डर्स आया, डिवाइड बाय 50 करो, यानी एक एक ब्रांच से उसको 200-200, एक एक डीलरशिप से 200 ऑर्डर उसका एवरेज बन रहा है।
एक एक डीलरशिप से 200 गाड़ी का उसका एवरेज बन रहा है। चलो देखते हैं ना कितना होता है, 10,000 डिवाइड बाई 50 डीलरशिप्स, 200। एक एक डीलरशिप में 200 का ऑर्डर आ रहा है उसको। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं करेक्ट ही हूँ शायद। यस। अब ये 200 ऑर्डर भी वो 100% कंफर्म नहीं है कि 200 ऑर्डर भी रहेगा। उसमें से ये लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज 10% कैंसलेशन समझ के चलते हैं। ठीक है, तो 1,000 निकाल दो, तो एक एक डीलरशिप में कम से कम एक 180 ऑर्डर समझ लो। तो अब ये लोग क्या करते हैं, एवरेज में इनको पता चल गया इतना इतना गाड़ी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें भी वो लोग 50-50 गाड़ी बना के भेजते रहते हैं और बाकी का 6-6 महीने का डिलीवरी, 6-6 महीने का टाइम पीरियड लेते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाते हैं। तो इससे फायदा क्या है जस्ट इन टाइम से, एक तो आपका होल्डिंग कॉस्ट पूरा रिड्यूस हो जाता है, यानी इतना बड़ा आपको बहुत बड़ा गोडाउन रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा गोडाउन का रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी फटाक मतलब एकदम आपको जैसे ही ऑर्डर मिलता है गाड़ी आता है, आप गाड़ी को उतारते हो, अपने पास रखते हो और बेच देते हो। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि सर पहले से ही तो रखा हुआ है उसमें, फिर होल्डिंग कॉस्ट कैसे कम हो रहा है। अब जैसे गाड़ी अगर हमारे पास 1 साल से पड़ी हुई है, ठीक है ना, हम 10,000 गाड़ियों का जगह क्यों रखें, हम ऑन द ठीक है, चलो इसको अगर आप एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हो, सपोज मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं क्या करता हूँ, मतलब लाइक क्लोथ मर्चेंट हूँ, क्लोथ का होलसेलर हूँ। मेरा एक ऑफिस है, कोई गोडाउन वोडाउन कुछ नहीं है मेरे पास, छोटा सा एक मेरा ऑफिस के नीचे छोटा सा एक लगा के रखा हुआ हूँ मैं, एक रूम जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बस, बड़ा गोडाउन कुछ भी नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, 10 सैंपल लगाता हूँ कपड़ों के, 10 शर्ट्स के मॉडल के, लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ, और हर दुकान में जो जो भी एक 50 दुकानों में मेरा सप्लाई है, सब जगह एक सैंपल बांट देता हूँ, वो लोग से ऑर्डर ले लेता हूँ, मेरे मैन्युफैक्चरर को बोलता हूँ, वो क्या करता है डायरेक्टली वहाँ माल बनाता है, इनको दुकान में डाल देता है। तो जब जैसा ऑर्डर आया वैसा बेच दिया, जैसा ऑर्डर आया वैसा बेच दिया। तो उससे क्या होता है, मुझे इतना सारा माल ला के पूरा का पूरा मेरे गोडाउन में डंप करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा गोडाउन का रेंट बच गया। गोडाउन में एक स्टाफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा बच गया, क्योंकि वो भी उसको भी सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ेगा। गोडाउन को पूरा का पूरा बनाने के लिए उसको तरीके से मतलब एक फैसिलिटी बनाना पड़ता है जिसमें सही तरीके से चीज़ों को रखा जा सके, उसका खर्चा बच गया। उसके बाद वो पूरे गुड्स का इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा बच गया। तो ये सब पैसा मेरा बच रहा है बिकॉज मैं जस्ट इन टाइम अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। और लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ठीक है, मेरा होल्डिंग कॉस्ट तो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और स्टॉक आउट का चांस होता ही नहीं है, जितना ऑर्डर मिला उतना का उतना मैंने ऑर्डर बेच दिया, दैट्स इट, दैट इज जस्ट इन टाइम अप्रोच। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको करना है, तो ये रेशियोज पे आपको जाना है, इनके सम्स करना है। और चलो हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पेज से 334, ठीक है, ये ख़त्म करेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, हाँ ये करना है उसके बाद। चलो यहाँ तक पढ़ो, मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, देन विल स्टार्ट अगेन। ओके फाइन।